Okay. Start now. आराम से पवन चश्मा वश्मा लगेगा क्या? Good morning, everyone. My name is Ashish Kumar Jha, and today I would like to present MRTP Act 1969 to Competition Act 2003. Can't hear you, Ashish. Yes, ma'am. Can't hear you. मैम नहीं आ रही आवाज. बोल भी रहे हैं. MRTP. First is prohibition of restrictive trade practice, and second is prohibition of monopolistic trade practice, and fourth, prevent the concentration of in few hands. Now we move further. Why some act were got restricted? According to amendment of Act 1974 and 1980, and in 1991, this act got restricted because the assets of some companies crossed more over 100 crores, and the companies invested their money in some new project, the expansion of their business and merged their business. That's why this act got restricted. Then the scope of MRTP. First, UTP, unfair trade practice, and second, MTP, monopolistic trade practice, and third is restrictive trade practice. Now RTP, preventing, destroying, restrictive of competition, and stop flow capital, and then unjustified cost increases. Restriction on buying and selling. It means person to whom goods may be sold and whom to be bought, means of manufacturers, dealer and distributor to supply goods to particular institution or consumer. Second, tie and sale of full line sourcing. The meaning of this line is if a person going to buying something, then also with particular goods, he had to buy something more by forcefully or ready for an example, orange drinks with cola drinks. Third, exclusive dealing agreement. It is about forcing not to deal with goods other than those of sellers,
means if a company producing something, it means no one other can produce the same product. Then collective price fixation and tendering. This topic said that collective agreement to purchase or sell or trading at agreed price and term means some board of directors when sitting together and they were decide that how much amount we produce and also deciding what will be produced and also deciding what will be the price of product. And then restriction of by association. That is how when association do not circulate his product to non-member, if it means we do not supply our product to other members. Then discriminatory dealing. It means some discriminatory on customer if any person buy a good in a bunch or they get real in the product price. On the other hand, if a single person go to buy a single product, they do not get any type of real or concession. Then restriction of manufacturing process. It means we use only fixed equipments and machines to produce the goods. Now, UTP, a false representation. First, falsely they suggest that their goods are very unique in nature, quality, and compositions are much better. Second, they falsely promise us that the service of particular goods are goods, but it is not. Third, they rebuild, renovate the second-hand items and sold it into the market. Fourth, the seller give false information about goods to their customer. And now MTP. First, product supply distribution should be limited for this reason. Price of goods are high. Second, they prevent their competitors. And third, they always try to fall the quality rather than make it best. Fourth, they cut the salary of their workers and labor. And they add it into their profit. 5. They spoil the market of the their competitors. And now, initiation of inquiry by the commission. First, if any customer complain against the goods in consumer forum, then the inquiry commission starts investigation against the seller product and take a legal action against him. Now, governing body, DGIR, Director General Investigation and Registration. Second, it consists chairman with the qualification of High Court judge and Supreme Court judge. Next, and it is also consists 2 to 8 members in governing body. Then it consists the tenure of 5 years, and the governing body will not the part of body more than 10 years. Then next, and the age of chairman should be below 65. This is called superannuation age. Next, power of commission. The power of commission call up any witness for inquiry. Then next, if the power of commission need any of the evidence, then the witness have to provide the evidence to them. Next, the witness should give
the evidence in affidavit from. And the witness will not present the vital answer. The power of commission has the authority to take the documents under custody. Restriction of power of commission. First, the power of commission will not work on export goods. Next, the power commission do not work on trade union. And next, it has no power to impose penalty. Thank you, ma'am. हाँ, पहले सोशल सिक्योरिटी है क्या? व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी? ब्रह्मा भी आके पढ़ा देना, आप लोगों को कोई असर नहीं होने वाला है। जब दो दो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी क्या है वो नहीं पता। व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी? मैं पढ़ाई, फिर एडवांस में शिल्पा मैम पढ़ाई, फिर भी कोई डेफिनेशन तक बोलने वाले नहीं है क्लास। क्या होता है अमृत में? नैना, पूरे क्लास का ही इमेज खराब है, कोई पढ़ने वाले नहीं है। सोशल सिक्योरिटी, हाँ बताइए मैम। सोशल सिक्योरिटी का मतलब जैसे बोल सकते हैं मैंडेटरी कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम वर्कर्स, जैसे कि ये मतलब ओल्ड एज हो गया, सुपरवाइजर्स हो गया, एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस हो गया। when you are capable to work, सुनिए, when ये सब हो गया, एग्जाम्पल वाज गुड बट डेफिनेशन गोज लाइक दिस कि जब हम केपेबल है कमाने के लिए तब तो हम कमा रहे हैं, तब तो हमको जितना रेम्यूनरेशन है, जो सैलरी है वो मिल ही रहा है। लेकिन व्हाट इफ हमेशा तो पोजीशन ठीक रहेगा नहीं, हमेशा तो पोजीशन ठीक रहता नहीं है, बहुत सारा और कैलामिटीज होता है। कभी मान लीजिए हाथ पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, जब हम कमाने लायक नहीं रहे तब क्या होगा? बूढ़े हो गए, रिटायरमेंट हो गया, तब क्या होगा? एक्सीडेंट हो गया, तब क्या हो गया? वुमेन का एक स्टेट होता है, मैटरनिटी वाला केस, उस टाइम क्या होगा? उस टाइम तो हम कमाने लायक रहेंगे नहीं। चाइल्ड केयर करने के लिए हमको वैसे भी घर पे रहना पड़ेगा, छोटा बच्चा है तो। वो सारे केस में आपका कंपनी का क्या दायित्व बनता है? वो होता है सोशल सिक्योरिटी। बताया गया था? हाँ, कोई क्लास नहीं किए थे? दो टाइप का सोशल सिक्योरिटी दिया जाता है, एक होता है सोशल इंश्योरेंस, दूसरा होता है सोशल असिस्टेंस। क्या होता है दोनों? क्या उर्दू में पढ़ाई होता है यहाँ पे? हाँ, उर्दू में पढ़ाई होता है क्या यहाँ पे? आप लोग के लिए कंफर्टेबल लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी में ही एक्सप्लेनेशन हुआ था। पूरा कंप्लीट करिए। पीपीटी जो भेजा गया है, पीपीटी कभी गो थ्रू हुए हैं? कभी गो थ्रू नहीं हुए हैं? सब कुछ पीपीटी में लिखा हुआ है। देखिए, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। कंट्रीब्यूशन वगैरह कुछ याद नहीं है? हाँ हाँ, याद आया? इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूशन होता है, हाफ एम्प्लॉय और हाफ आपका जो एम्प्लॉयर है, या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई। जैसे एग्जांपल, पीएफ हो गया, ये सब आ जाएगा सोशल इंश्योरेंस में। असिस्टेंस में क्या हो गया?
100% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का ही होगा। जैसे मान लीजिए मतलब गरीबी तबके के जो लोग हैं जिसका इनकम उतना बेहतर नहीं होता है, वो लोग सोशल असिस्टेंस का फायदा उठा सकते हैं, है ना। बीपीएल वाला हो गया, फिर अभी जीवन योजना है अटल मोदी जी जो अभी दे रहे हैं, बीमा योजना, है ना, वो सारे एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इसका असिस्टेंस का। उसके बाद एक्ट बताया गया था, देखिए मिनिमम स्टैंडर्ड कन्वेंशन नंबर 102 आईएलओ के द्वारा जो दिया गया था, इतना बेनिफिट कम से कम आपको देना है सोशल सिक्योरिटी के अंदर। स्क्रीन दिख रहा है सबको? देखिए मेडिकल केयर मिलना चाहिए, सिकनेस बेनिफिट मिलना चाहिए, ओल्ड एज और रिटायरमेंट बेनिफिट, इंजरी बेनिफिट, फैमिली बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, इनविजिलिटी बेनिफिट, मतलब कोई ऐसा स्टेज जिसमें हम काम करने में सक्षम नहीं हो और 6 महीने से लंबा जा रहा है हमारा इलनेस, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इनवैलिडिटी बेनिफिट। ये कम से कम बेनिफिट एज सोशल सिक्योरिटी में आपको देना ही देना चाहिए, अंडरस्टूड। उसके बाद देखिए कौन कौन सा एक्ट लाया गया है सोशल सिक्योरिटी के अंदर। पहला है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, जिसका नाम अब चेंज करके एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट हो गया है। राम कहानी याद रहेगा कि फिर से एक कान से सुनेंगे कान से निकल जाएगा। एक्टिव लिसनिंग के लिए पेन यूज करिए, बताया गया है। कभी किसी का पेन नहीं चल रहा है, फिर नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे फिर आंसर नहीं देंगे। हाँ क्या चल? देखते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट अब इसका नया नाम फाइन। इसमें है कि 3 दिन से अधिक अगर इंजरी होता है तो आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। अब काम करने के दौरान अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उंगली कट गया, 4 फिंगर कट गया, वो पूरा शेड्यूल बना हुआ है इस एक्ट में। टोटल 4 शेड्यूल दे रखा है। चारों शेड्यूल में क्या क्या है वो भी मैं इसमें मेंशन की हुई। देखिए शेड्यूल 1 में डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरी। डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरी मतलब क्या हुआ, अंगूठा कटा है तो कितना कंपनसेशन, 4 उंगली कटा है तो कितना % डिसेबलमेंट हुआ, वो कितना कंपनसेशन मिलेगा, तो वो शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है। शेड्यूल 1 में क्या, उतना एक्ट के अंदर अभी डिटेल ओरिएंटेड आपको नहीं पढ़ना है। 60% है कि 30% है, वो जब एक्ट पढ़ाई होगा 3rd ईयर में आप लोग के है। हाँ, तो 3rd ईयर में आप लोगों को डिटेल चैप्टर वाइज पढ़ना है। अभी आपको चैप्टर वाइज नहीं, बस एक इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है, तो बस इतना ही जान लीजिए। उस शेड्यूल में बस डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरी है, ठीक है। 100% डिसेबलमेंट हुआ है या फिर आपका 60% हुआ है या 30% हुआ है, वो शेड्यूल में लिखा हुआ है लिस्ट बनाकर, ठीक है। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है और सामने लिखा हुआ है 60% की 30% की 100%। 100% का अलग लिस्ट है, बाकी पार्शियल डिसेबलमेंट का अलग लिस्ट है। समझ आया शेड्यूल 1। फिर आ गया शेड्यूल 2 में लिस्ट ऑफ द पर्सन। लिस्ट ऑफ द पर्सन मतलब कौन कौन से ऑक्यूपेशन में ये सारा बेनिफिट मिलेगा, आप किस ऑक्यूपेशन में है और कौन कौन पर्सन इसमें इस वर्कमैन कंपनसेशन के अंदर आते हैं, वो आ जाएगा शेड्यूल 2 के अंदर। नेक्स्ट आपका है शेड्यूल 3 ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑक्यूपेशनल डिजीज मतलब कुछ ऑक्यूपेशन होता है जो थोड़ा बहुत हजार्डियस होता है, उस ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग आपको कंपनसेशन मिलता है। ऑक्यूपेशन जैसे मतलब खदान में जो काम करते हैं, हाँ अंडरग्राउंड काम करते हैं, कंप्रेस्ड एयर होता है, सांस का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो मतलब जॉब के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, कौन कौन सा ऑक्यूपेशनल डिजीज कवर होगा, ठीक है, तो वो आपका शेड्यूल 3 में कवर्ड है, ठीक है। और फिर शेड्यूल 4 रेट ऑफ कंपनसेशन, किसका कितना रेट मिलेगा, ठीक है। तो जिसको जैसा कंपनसेशन मिलता है वो पहले 4 शेड्यूल से देखा जाता है कि कितना कंपनसेशन लेने के लायक है, ठीक है, उसके बाद मिलता है। ये आपका वर्कमैन कंपनसेशन के अंदर दिया गया है, फाइन। फिर ईएसआई, इसके बारे में पता होगा। अगर आप वर्कमैन कंपनसेशन के अंदर दोनों में से कोई एक से ही आप ले सकते हैं, दोनों से नहीं ले सकते, पता है ना। ईएसआई में अगर आप कवर्ड हैं तो ईएसआई में सारा बेनिफिट आ जाता है जो वर्कमैन कंपनसेशन में है। सिकनेस हो गया, मेडिकल हो गया, लिस्टेड है यहाँ पे, है ना। सैलरी मिनिमम 21,000 पर मंथ होना चाहिए, आई मीन इतना है तो मिलता है, ठीक है, तो ये लाइबल है। उसके बाद
सिकनेस बेनिफिट हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, डिसेबलमेंट बेनिफिट हो गया, डिपेंडेंट बेनिफिट हो गया, मेडिकल बेनिफिट हो गया। ठीक है, ये सारा बेनिफिट आपको मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी होता है। तो बस यहाँ पॉइंट ऑफ नोटेड क्या है कि अगर आप ईएसआई से बेनिफिट उठा रहे हैं तो फिर वर्कमैन कंपनसेशन से आप नहीं उठा सकते। और पीएफ वाला पता ही है आपको कि हाफ आपका होना चाहिए कंट्रीब्यूशन, आपका हाफ कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर, है ना। तो ये सारा एक्ट बेसिकली लाया गया। तो अभी बस एक इंट्रोडक्शन है यहाँ, ये है आपका सोशल सिक्योरिटी, थोड़ा ब्रीफ कर चुकी हूँ। देखती हूँ नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन कैसा है।